Okay. Now, the process of ecological succession we can learn by a trick which is known as Nick R student. Nick R students, we can say there are 5 steps included in this process ecological succession. 5 steps होती बेटा. NICRST ये एक 2 लेटर की बनी हुई एक स्टेप है, बाकी सब में एक एक है, आप ये ध्यान रखें. NIC Nick R student. First of all, N. What do you mean? N. Nudation. Nudation. What is nudation? Nudation means removal of any type of vegetated land. First thing is that it is very essential, that mean removal of vegetation from a particular piece of land. After a removal of this vegetation, next steps can be occur. So nudation का meaning क्या होता है बेटा? Formation of barren land. फॉर्मेशन ऑफ बैरन लैंड. समझ गए? यानी कि ऐसी जमीन का टुकड़ा बनना, एक ऐसे लैंड का पीस बनना जिसमें किसी टाइप की वेजिटेशन नहीं होती, न्यूडेशन की प्रोसेस कहलाती है. एंड द नेक्स्ट थिंग इज आई. नेक्स्ट स्टेप इज आई. आई मीन्स इनोवेशन. I for innovation. I stand for innovation. Innovation, that means starting of vegetation. What is this? Starting of vegetation in any of barren piece of land, known as innovation. And innovation has 3 steps, sub-stages. Innovation has 3 sub-stages, which are known as first migration, second with ecosis, and third one is aggregation. Okay, MIA, migration, ecosis and aggregation. Now हमें ये समझ लेना चाहिए कि माइग्रेशन क्या है. Migration means coming of any type of living species into any nudative part or barren land. Coming of any living species into any barren land by the help of, किसकी हेल्प से आ सकता है बेटा? ये आ सकता है वाटर की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ वाटर और बाय द हेल्प ऑफ एयर. किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी रिसोर्सेज से आ सकता है. एनी एनिमल कैन ऑल्सो कैरी एनी टाइप ऑफ स्पीसीज, बट वी शुड नो अबाउट the new migrate species can be comes into which form. किस फॉर्म में आते हैं? तो बेटा हम इनका डिस्कशन यहां इजीली कर सकते हैं. इन द फॉर्म ऑफ सीड, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर, और इन द फॉर्म ऑफ एनी वेजिटेटिव पार्ट. ओके, इन द फॉर्म ऑफ एनी वेजिटेटिव
पार्ट, सीड यू नो वेरी वेल, एंड स्पोर एंड वेजिटेटिव पार्ट, कोई भी उसका रूट का पार्ट या फिर उसके स्टेम का या फिर उसकी लीव्स का कोई भी पार्ट, ऐसे प्लांट जिनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, सिंपल है। नाउ आफ्टर माइग्रेशन, दैट मीन आफ्टर migrating of any new species in the form of seed, spore or vegetative part, the settlement of this species is very, very compulsory in a new ecological environment, new ecological climate. If any of migrated species settle down in a new climatic condition, this process is known as ecosis. Okay? हम इसको सिंपली ये भी समझ सकते हैं बेटा, ई कोशिश यानी कि वो कोशिश करता है उसमें सेटल डाउन हो जाए। हालांकि ये इसका मीनिंग नहीं होता, समझने के लिए, याद करने के लिए बहुत बेनिफिशियल टर्म है। इकोसिस, इकोलॉजिकली ट्राई, इकोलॉजिकली सेटलमेंट ऑफ द न्यू माइग्रेटेड स्पीसीज, दैट मीन नोन एज इकोसिस। एंड नेक्स्ट, आफ्टर इकोसिस we know very well, after ecosis, very fast growth can occur in this new migrated species. Okay? And due to very fastly growth, a very great group formation can be occur of this species. This is known as aggregation. एक बड़ा सा क्लैम्प बन जाता है, एक बड़ा सा झुंड बन जाता है और उसमें बहुत सारे प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ कम ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ द ट्रिक, NIC, I have done NI, and now time to describe about the C. What do you mean C? C stand for competition. C stand for competition. You know very well, जब किसी एक ही स्पीसीज के बहुत सारे मेंबर एग्रीगेट हो जाते हैं, आफ्टर एग्रीगेशन ऑफ देयर आर सो मेनी मेंबर्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इन ए बैरन लैंड, ए वेरी ग्रेट प्रोसेस विल अकर। एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है बेटा, और वो होती है कंपटीशन। यू नो वेरी वेल, कंपटीशन किस लिए होता है? For the requirement, their basic needs, for their basic needs. You know, basic needs क्या होती है? Space. Second thing, water. And third thing, sunlight. स्पेस, वाटर एंड सनलाइट। स्पेस का मीनिंग जगह का है और प्लस इसके क्या होती है बेटा? मिनरल। उसे मिनरल चाहिए, प्लांट है उसको वाटर चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए उनकी वेल ग्रोथ के लिए, और इस प्रोसेस के लिए उनमें आपस में होता है कंपटीशन। कंपटीशन हैव टू पुश सक्सेशन into next step, but you know, competition is a harmful process. एक तरह से हार्मफुल प्रोसेस है। कंपटीशन में जितने मेंबर्स होते हैं उनमें लॉस होता है, बट उनमें से कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो वेल सेटल्ड कर लेते हैं, इसको कंपटीशन कहते हैं, सक्सेस ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट, NIC, N फॉर इन्यूडेशन, I फॉर इनोवेशन। इनोवेशन के 3 सब स्टेजेज है, C फॉर कंपटीशन एंड R फॉर नेक्स्ट रिएक्शंस। व्हाट डू मीन रिएक्शंस? रिएक्शन, any type of a biological species when it invade in any new piece of land, a biochemical reaction will occur. After competition, they start the reaction with this particular area.
ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये अपने उस एनवायरनमेंट को खुद के लिए ही इनफेवरेबल कर सकते हैं। यू नो इनफेवरेबल, इनफेवरेबल का मीनिंग क्या होता है? वो अपने लिए उस जगह को अनफिट कर लेते हैं, और इसका कारण सबसे बड़ा क्या होता है? रिएक्शन। ओके, ये जो रिएक्शन है ये बायोकेमिकली होती है। कुछ प्लांट्स रिलीज करते हैं केमिकल मटेरियल, और वो उस एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। उस एनवायरनमेंट में फैलने के बाद वो जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल रबिश हो जाता है, न्यू स्पीसीज के लिए सूटेबल नहीं होता। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिएक्शन। ओके, एंड द लास्ट एंड फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज नंबर 5, स्टेबिलाइजेशन। You know, what is stabilization? Climax community. In any type of succession, the last step will be stabilization. Stabilization means settlement, most settlement or most settled species, most settled type of vegetation, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहला। लास्ट सबसे ज्यादा जो सेटल्ड कम्युनिटी होती है उसको स्टेबिलाइज्ड और क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। दिस इज अ कंप्लीट इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके, ठीक है, तो बेटा ये हो गया बेटा प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखिए हम करेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सीरियल कम्युनिटीज इनोवेशन और सक्सेशन के टाइप। आपके एनसीईआरटी में 2 सक्सेशन है, एक है lithosphere. Number 1 is lithosphere and second one is हाइड्रोस्फेरे। बेटा एक वर्ड हमने पढ़ा था, हमारी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था, और आज मैं आपको यहाँ बता भी रहा हूँ इस वीडियो में। सेरे का मीनिंग क्या होता है? द मीनिंग ऑफ सेरे, मैंने पहले आपको बताया था बेटा कि 2 मैन कम्युनिटी होती हैं किसी भी सक्सेशन में। दे आर 2 टाइप ऑफ द मैन कम्युनिटीज आर फाउंड इनटू एनी टाइप ऑफ सक्सेशन। पहली क्या बताई थी बेटा? पायोनियर कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी। और दूसरी क्या बताई थी? आपको बताई थी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। एंड द ऑल different type of communities which are found between pioneer and climax community are known as, इससे एक अलग वर्ड बनता है, इसको बोलते हैं सीरियल कम्युनिटी। ओके, सीरियल कम्युनिटी यानी कि इधर क्या आ गया? पहले सबसे पहले आ गया पायोनियर कम्युनिटी, एंड लास्ट आ गया क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ओके, पायोनियर और क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बीच की जो जितनी भी कम्युनिटी होती है उनको क्या कहते हैं? सीरियल कम्युनिटी कहते हैं। बट नाउ टाइम स्टडी अबाउट द सेरे। व्हाट इज सेरे? तो सीरियल से ही ये वर्ड बना है बेटा, द सीरीज स्टडी और द स्टडी इन सीरीज ऑफ ऑल द स्पीसीज विच आर फाउंड इन एनी टाइप ऑफ सक्सेशन।
किसी भी टाइप के सक्सेशन में पायनियर से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जो हम पढ़ते हैं, जितनी भी स्पीसीज पढ़ते हैं या कम्युनिटीज पढ़ते हैं, उन सभी को टोटली कंबाइनली क्या कहते हैं बेटा? उनको कहते हैं। ओके, so now you can define this word lithocere and you can define also hydrocere. What do you mean the lithocere and hydrocere? देखो बेटा, मैं आपको बता चुका हूं, यहां पर मीनिंग है लिथो मीन्स rock, cere the study of communities in a series, and here hydro means water. Okay. The study in series of the different type of species into water known as hydrocere, fresh water, only fresh water, and the succession on a barren rock. The succession of on a barren rock is called cere. Now, I would like to explain about both of them. हाइड्रोसेरे पहले ही इसको डिफाइन कर चुके हैं. द इन्वेशन ऑफ सीरल कम्युनिटीज all from pioneer to climax into fresh water, or we can say succession in fresh water is known hydrocere. इसके लिए भी बेटा मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जो याद की जा सकती है. 7 स्टेप्स होती है इसमें. कितनी स्टेप्स होती है? 7 स्टेप्स होती है. और इन 7 स्टेप्स के लिए एक ट्रिक बनाई गई है. प्रोफेस क्या है? प्रोफेस, दैट मीन प्रोफेस फॉरेस्ट. प्रोफेस फॉरेस्ट. वैसे तो स्पेलिंग नहीं आती इसमें ट्रिक में, लेकिन आप इसे सीधे सीधे समझ सकते हैं. प्रफास फॉरेस्ट कितनी होगी बेटा? नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड ये है 7. आप समझ सकते हैं यहां पर. फर्स्ट, द फर्स्ट टाइप ऑफ द इनवेटिव और इन्वेसिव species known as phytoplankton. जानते हैं आप? Phytoplankton. Phyto means a word that can be used with the plants. Plankton, that mean floating plants. Those can be float on the surface of water. Phytoplankton सबसे पहले आते हैं. किसी भी टाइप के फ्रेश वाटर बॉडी में सबसे पहले जो माइग्रेट होने वाले लिविंग बीइंग्स होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन. इसको हम यहां पर एक छोटा सा एक पोंड का डायग्राम बना करके समझ सकते हैं. ये बहुत ही सिंपल होते हैं जो इसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं. इनका एग्जाम्पल है बेटा साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया आपने पढ़ा हुआ है इसके बारे में. इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. ओके, ब्लू ग्रीन एल्गी. एंड
diatoms. These are pioneer species or pioneer community of हाइड्रोसेरे. फाइटोप्लैंक्टन एग्जाम्पल दो ही हैं बेटा, सी एंड डी, जो सिंपली आप याद रख सकते हो. आपके एनसीईआरटी में भी यही है और आपके नीट में भी यही पूछे जाते हैं. आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं जाता नीट में कोई भी एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन. सेकंड नंबर, आर. सिंपल सा है. आर का यहां पर मीनिंग क्या होता है? पी फॉर फाइटो प्लैंक्टन, सेकंड आर फॉर रूटेड. रूटेड प्लांट्स. लेकिन इनकी एक खासियत और होती है. रूटेड तो एक कैटेगरी और आएगी, इससे अगली भी है वो भी रूटेड आएगी. लेकिन इस रूटेड प्लांट्स की खास बात क्या होती है कि ये सबमर्ज्ड है, यानी कि ज्यादातर पानी में डूबे रहते हैं. मोस्टली submerged into water. Or these example of these plants, hydrilla and वेलिस्नेरिया. आप अच्छे से जानते हैं ये वही वेलिस्नेरिया है जिसमें हमने पोलिनेशन पढ़ा था. कौन सा? हाइड्रोफिली. यस, वही है हाइड्रोफिली. सिर्फ ये एक ही एग्जांपल है प्लांट्स का जो हमारे एनसीईआरटी में है. नंबर 3, क्या बेटा? एफ. एफ फॉर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. विच काइंड ऑफ प्लांट? फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो फ्रीली फ्लोट करते हैं, जो फ्रीली पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते रहते हैं, जो अकॉर्डिंग टू करंट, वाटर करंट, they can move from one to next place. Example is Eichhornia. हाँ, ये वही प्लांट है जो आप समझ रहे हैं. आपने ये प्लांट पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि ये प्लांट कहाँ पर पाए जाते हैं. ये प्लांट पाए जाते हैं फ्रेश वाटर बॉडी की सरफेस पर. कभी इन्हें इंडिया में लाया गया था फॉर द डेकोरेशन ऑफ ए फ्रेश वाटर बॉडी. पता नहीं था इतना खतरनाक निकलेगा, क्योंकि ये उस समय लाए गए थे जब फ्रेश था, हमारे लिए एक नया था, एक न्यू एग्जांपल था. लेकिन ये बहुत फास्टली ग्रोथ करता है. स्पेशली फर्स्ट टाइम इसे बंगाल में लाया गया था, इन्वेट किया गया था, तब इसका नाम तभी है. वहाँ बहुत भयंकर, बहुत हाईली ग्रोथ इसने की, और ग्रोथ करके इसने पूरी वाटर बॉडी को स्पॉइल कर दिया, फिनिश कर दिया, खराब कर दिया, और दूसरे किसी प्लांट्स को ग्रोथ नहीं होने देता. इसलिए इसका नाम क्या है? टेरर ऑफ बंगाल. यस, वही है ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट है. और ये एक और एग्जांपल देता है आपके एनसीईआरटी में, एक एग्जांपल और है, और ये होता है बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम. ओके, कितनी टर्म हो गई? फाइटोप्लैंक्टन, rooted plant, but which kind? Submerged and free floating. Now rooted है, लेकिन मैंने आज कौन सा वर्ड लिया काम में, कौन सा लेटर काम में लिया? ए लिया है. यहां मैंने ए इसलिए लिया है क्योंकि इसका नाम एम्फीबियंस प्लांट्स भी है बेटा. Which kind of plants? Amphibian plants. Amphibian का मीनिंग आप समझ रहे होंगे. ऐसे प्लांट्स जो वाटर में भी रह सकते हैं और वाटर से बाहर टेरेस्ट्रियल लैंड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं. बट ये यहाँ पर इनका ये एग्जाम्पल इसलिए लिया गया, ये नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इनकी 3/4 पार्ट
of body aerial होता है बेटा. Most part of these plants body found outside the water body. पानी के बाहर पाए जाते. समझ गए? इसलिए इन प्लांट्स को क्या कहते हैं बेटा? रूटेड रेड स्वैम्प और एम्फीबियन प्लांट्स. ओके. एंड द फिफ्थ टाइप, ध्यान से यहां से लर्न कर लेना इस ट्रिक से. फिफ्थ टाइप, फर्स्ट एस, सेज टाइप, सेज प्लांट्स. सेज प्लांट्स क्या होते हैं? सेज प्लांट्स, these plants are found marshy land, also known as marsh meadow. कैसे होते हैं? marsh meadow. These plants only found into marshy land. And second last, again, scrub. What do you mean scrubs? Herbaceous plant which are found into marshy land. कौन से plants? Marshy shrubs. देखो बेटा उस डायग्राम को एक बार वापस लेते नीचे. ये देखो, ये हमने कितनी स्टडी कर ली? यहाँ पर 6 स्टडी कर ली है. 7th है वो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, आप अच्छे से बहुत इजीली समझ जाएंगे उसको. पहला फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन है, इसकी सरफेस पर पाए जाते हैं. ओके. दूसरा है, आप यहाँ देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और डायटम्स. ठीक है. आप यहाँ पर देख सकते हैं. दूसरे टाइप के कौन से होते हैं? रूटेड प्लांट्स, सबमर्ज्ड हाइड्रीला, अंदर जो उसके डूबे हुए होते हैं. ये सेकंड कैटेगरी है. थर्ड, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, इकोनिया. ये प्लांट्स इसके ऊपर वाटर सरफेस पे लीफी प्लांट्स होती है जिनमें स्टेम, रूट, ये सारी चीजें होती है. क्या लिखा गया यहाँ पर? फ्री फ्लोटिंग. इनको आप रूटेड भी कह सकते हैं. रूटेड यानी कि रूट भी पाई जाती है इनमें. इनको रूटेड भी कह सकते हैं, जो इसकी सरफेस के वाटर बॉडी सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं. नेक्स्ट, नंबर 4, रूटेड एम्फीबियंस प्लांट्स. ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो रूटेड होते हैं लेकिन बाहर निकले हुए होते हैं. रूट्स आर वेल सेटल्ड but most part of body found outside the water body. Okay. And number 6, scrubs. वो इसमें मैं नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता? इसके लिए मैं आपको अलग से बता रहा हूं. तो बेटा ये वाटर बॉडी है, इसमें इतनी सारी कम्युनिटीज डेवलप हो गई. After development of so many types of communities in this water body, a very less amount of water is found due to sedimentation of water, due to sedimentation of dead body part of these plants.
These plants also help to stopping the wind. Wind, can be carry particles of fine and very small particles of sand particles, and these sand particles deposition occur in this body. These particles deposition occur due to deposition of these particles. This fresh water body will finish. Okay. Sedimentation of sand particles occur here, and this sedimentation of sand particles help to convert this fresh water body into totally deposition of sand particles, change into a landform, and lastly, this water body change into a very fertile, moisture containing land, piece of land, and this piece of land help to grow up green forest. Okay, green forest and this type of succession are the last plants, or we can say climax plants. Okay, climax plants. Now this succession or this type of succession which is known as हाइड्रोसेरे, आप समझ गए होंगे बेटा, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे. सक्सेशन इनटू फ्रेश वाटर बॉडी. ओके, क्या बताया हमने आपको? 7 टाइप की स्टेप, 7 स्टेप्स बताई बेटा. कौन सी? PRFASS फॉरेस्ट, सबको मैंने अलग अलग बता दिया. P फॉर फाइटोप्लैंक्टन, R फॉर रूटेड प्लांट्स बट रिमेन सबमर्ज्ड, डूबे रहते हैं पानी में, हाइड्रोला एंड वेलिस्नेरिया. एंड free floating, third type, F means free floating or rooted plants. They float on the water surface, especially example Eichhornia. And rooted or amphibians plants, you can understand, they has root, but amphibian type, that mean their most body part remain aerial. 3/4 part of their body remain aerial. Fifth is sedge plants और वी कैन से मार्सी लैंड प्लांट्स, जो छोटे साइज के होते हैं, हर्बेसियस टाइप के होते हैं. मार्स मेडो या मार्सी लैंड प्लांट्स कहते हैं. 6 टाइप स्क्रब्स और मार्सी सर्ब्स. मार्सी लैंड बट सर्बेसियस प्लांट. एंड लास्ट फॉरेस्ट विच आर नोन एज climax plants. Okay. Now next point, Lithocerae. Second type is succession. Lithocerae. Okay, Lithocerae, the succession on a barren rock. The process of succession occur on a barren rock is known as Lithocerae. है नहीं? किसी भी नेग्ड बैरन रॉक पर सक्सेशन की प्रोसेस होने को क्या कहते हैं बेटा? लिथोसेरे कहते हैं. और इसमें बिल्कुल सिंपल है, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है. इसमें 6 स्टेप्स होती है. फर्स्ट स्टेप इज क्रस्टोस. फर्स्ट इज क्रस्टोस.
क्रस्टोस, द मीनिंग ऑफ लेयर, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज लेयर। एक पतली सी पपड़ी होती है, लेयर की बजाय हम क्या माने इसको, एक पपड़ी है। और इसका एग्जाम्पल होता है बेटा लाइकेन। मैं आपको यहां एक छोटा सा एक रोक बना करके बताता हूं। मान लीजिए बेटे ये एक रोक है, बैरन रोक। सबसे पहले कौन सी स्पीशीज आती है, लाइकेन्स। The development of simplest form of plants take place on the barren rock, which are known as lichens. These lichens start decomposition of the surfacial rock. Okay, you can understand by taking an example, weathering. अब जानते हैं वेदरिंग की एक प्रोसेस होती है बेटा। दिन भर सनलाइट इंटेंस होती है, सनलाइट के इंटेंस होने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। ड्यूरिंग डे टाइम इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर आकर दिस इंक्रीजिंग हेल्प इन द रॉक एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन इन दिस टाइप ऑफ रॉक ड्यूरिंग नाइट reducing of temperature occur, and this reducing of temperature facilitate some types contraction and some parts not contraction occur, and it help formation of some cracks in this rock. Okay. After this process, crack formation in this rock, new process is fast blowing of air, wind. Fast blowing of air current and fast blowing of water current do process help to form soil from this rock. Slowly, due to flowing of the very fast air and blowing of very fast water current, the removal of the uppermost part of this rock take place known as weathering, and this process help to formation of soil. We know there is no any type of soil found on the rock, and due to non-presence of a soil on the rock, there is no any type of vegetation can be grow. Therefore, first time which kind of the species growth take place, लाइकेन। लाइकेन बेटा चिपक जाते हैं। लाइकेन के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, अच्छे से पहले से पढ़ा हुआ, आपको बताया हुआ है। लाइकेन क्या होते हैं? द एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी, दे स्टार्ट टू रिलीजिंग सब स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एसिड। दीज ऑर्गेनिक एसिड डिकम्पोज द अपर पार्ट ऑफ रॉक, और वी कैन से सरफेशियल। सेकेंड इज Polycodes. Large lichens. Polycodes वर्ड जहां भी यूज आए, वो वर्ड, उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा? इसका मीनिंग ये होता है लीफी स्ट्रक्चर। दैट मीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे प्लांट्स में लीफ जो होती हैं वैसे लीफ जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। यानी कि अब की बार इसमें हम दूसरे टाइप के लाइकेंस हैं, उनकी हम स्टडी करके बता सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस टाइप के grown of leaf-like structure, grown of leaf-like structure. Let's start.
Lithoserae. You can understand the succession process on a barren rock. कितनी टाइप के बताए मैंने इसमें? हाइड्रोसेरम मैंने बताए 7 टाइप, एंड यहाँ पर मैंने कितनी टाइप के बताए? 6 टाइप. 1 less than हाइड्रोसेरम. स्टेप्स. फर्स्ट इज क्रस्टोस. क्रस्टोस का आप मीनिंग समझ रहे हैं कि ऐसे लाइकेंस होते हैं जो छोटे होते हैं, पपड़ी जैसे होते हैं, रॉक के ऊपर चिपक जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं. और ड्यू टू रिलीजिंग ऑफ दिस ऑर्गेनिक एसिड द रिमूवल ऑफ द अपर सरफेस अकर हियर. ओके, नेक्स्ट फॉलिकोस. फॉलिकोस टाइप के लाइकेंस, ये भी लाइकेन, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये छोटे हैं, ये छोटे हैं, और ये कैसे होते हैं? बड़े. बड़े और छोटे का यहाँ मीनिंग क्या है बेटा? साइज का नहीं है, यहाँ मीनिंग है ये पपड़ी जैसे होते हैं, लेयर फॉर्मेशन अकर, बट लार्ज टाइप ऑफ लाइकेंस look like leafy vegetation, but it is a structure of lichen. Okay, and the third type of lithocerid mosses. Fourth, herbs. Fifth, shrubs, and sixth, forest. That means tree. फॉरेस्ट मीनिंग ट्री. आप हमेशा ये याद रखिए कि फॉरेस्ट का मीनिंग यहां पर क्या होता है बेटा? ट्री है. शब्स, जीजीफस बेर की झाड़ी, द शर्ब ऑफ लेमन, शर्ब ऑफ ऑरेंज एक्सेट्रा, ये प्रोड्यूस होती हैं. एंड हर्ब्स, बहुत सारे एग्जांपल्स इसके, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है. मॉसेज, दे आर सो मेनी टाइप ऑफ मॉसेज. ओके, स्फेगनम एक्सेट्रा. ये 6 स्टेप्स होती है बेटा. पहला है क्रस्टोज, सिंपल फॉर्म ऑफ लाइकेंस. सिंपल फॉर्म ऑफ लाइकेंस. ओके. सेकेंड इज फॉलिकोज. फॉलिकोज मीन्स लीफी लाइक